So we started with the unit 2, right? That is relation of the partners, right? I told you the third parties, right? Yes, ma'am. हाँ बोलिए. Shruti, can you hear me? अच्छा ठीक है. I don't know. ठीक है. So, right? I told you the third parties are the parties other than partners and the firm itself. Right? They can be your creditors, your debtors, government agencies, your employees, right? Your bankers, lenders, or even firm has given loan to someone else, your borrowers. So they constitute what your third parties. Now we have to understand the mutual rights and liabilities of the partners. Mutual means among themselves, right? So the right between the partners, the duties between the partners towards each other. Then, right, नेक्स्ट सेक्शन में मतलब आगे जाके हम सीखेंगे कि राइट्स एंड लाइबिलिटीज और ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज. देन राइट एंड में हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप, ये इस चैप्टर में यूनिट में आएगा, वो भी हम सीखेंगे. सो सेक्शन 9 एंड सेक्शन नंबर 10 gives mandatory duties of the partners. Section 9 and 10 of the IPA 1932 gives mandatory duties of the partners. What do you mean by mandatory duties of the partner? Right, means these duties cannot be changed, right, by the agreement between the partners. And other section, section 11, 12, 16 to 25 gives, right, general duties and rights of the partners which can be changed by the agreement between them. So, right, generally the contract between the parties, the partnership deed, right, that is the partnership deed, governs the relation between the partners. Their rights and their duties are generally mentioned, right, in the partnership deed. So partnership deed will prevail, right, over the act in such cases. However, any provision of the deed should not defeat the purpose of the act, purpose of the law. अगर वैसे है तो then it is not valid provision in the deed. ठीक है. Then next, if deed is silent, if there is no deed, right, there is no specific point in the deed, in such a case we have to refer Indian Partnership Act to decide the relation between the partners. And then we started with the rights of the partners. उसमें से हमने 3 अभी तक rights किए. First right था right to take part into the business. Subject to the contract between the parties, every partner is entitled to take active part into the management of the business. Right. However, it is general that partners assign that responsibility, that right, to some of the partners. They are called as active partners in that case. Okay. So, right, if there is no such agreement, then every partner has a right to take active part in the business, and if he is refrained from that right, he can always go to the court, right, and he can get his right established. But court intervenes only if there is no contract as to that, right, understand. So, right, if there is a contract that, right, according to which some of the partners can only take into the like active management, participation in the active management, in that case even court cannot interfere. Court will interfere only if that clause in the deed is with, right, some fraudulent purpose. Second right tha, right to be consulted. So it is a right of every partner to be consulted before any decision is taken. He has a right to express his opinion, right, on a subject matter. And if there are differences, right, in that case the normal items, normal subjects are ordinary subjects, routine subjects are, right, decided by the majority of the partners.
and if there is no majority because of equality, right, in that case status quo will prevail. I mean, right, as it is रहेगा, change will be forbidden. However, if the matter is very specific, very important, right, special matter discuss हो रहे, right, example, change in the name of the firm, change in the nature of the firm, right, admission of a new partner, admission of minor as a partner to his benefit, समझ में आ रहा है, such decisions, right, are very important decisions, special decisions. These are some of the examples, right? And in such cases, majority will not be sufficient. It requires unanimity of the opinion. Every partner must consent for such change. So, right, try to understand which is routine and which is special depends from firm to firm, changes from firm to firm. It is subjective in the nature. Try to understand. So we have to understand their business. We have to understand what are routine activities, what are special activities, and accordingly we will decide. But what is important? That every partner has a right to be consulted. Then, next, right to the accounts was the third right, right? Right to the accounts. Every partner has right of access to inspect the books and to make the copy or take the copy of books of accounts of the firm and other books as well, except minor partner who has, right, no access or no right to inspect or no right to copy the other books. Try to understand. Otherwise, every partner has that right. However, one of the partner may be looking after the accounts of the firm, right? It is his duty to furnish, right, up to date accounts to other partners whenever they demand. Try to understand. And वो duties में आ जाएगा. And then, right, even the right gets extended to the legal representatives of deceased partner or his legal heirs or the agents appointed by legal heirs or legal representatives, right? They can also access, inspect, and make the copy of the books of accounts. Then this was the third right, right? Right to access the books of accounts. Now the fourth right, I will share my screen right now. Okay? Now your third right. Yes. Third right okay. Now we have to start with the fourth right. That everybody knows. It is the right of every partner to share the profits. Right. So क्या लिखा है? Right number 4. Right to share the profits. Yes. And it is essential feature. Sharing of the profit is prima facie evidence of what? The existence of the partnership. Right. There cannot be a person who will be sharing only losses. ये हमने सीखा है. वही यहाँ पे आया, ध्यान देना. Right to share the profits is, right, one of the important rights of the partner. Sir, कौन से रेशियो में शेयर करेंगे? Subject to the contract. Subject to the contract between the parties, partners are equal partners, so they will be sharing profit and losses equally. Subject to the contract means if contract provides some different ratio, they will be sharing profit and losses in that ratio. Otherwise, if there is no specific deed, if there is no specific provision, partners share profits and losses equally. If some partner, suppose there is no deed नहीं है, right, agreement नहीं है specific to that point, एंड कोई पार्टनर बोलता है नहीं, वी आर नॉट इक्वल पार्टनर्स, मेरा ज्यादा प्रॉफिट है, इसका कम प्रॉफिट है, सपोज, समझ में आ रहा है? इन दैट केस कोर्ट विल आस्क टू प्रूव सच पार्टनर जो बोल रहा है कि नहीं इक्वल नहीं है, राइट, उस पार्टनर को प्रूव करना होगा कि यस ये इक्वल नहीं है, तो ही हैज टू फर्निश सम, राइट, प्रूफ्स, कुछ तो उसको एविडेंसेस देने पड़ेंगे. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन. Section 13B talks about right to share, right, the profits. In the absence of any agreement, the partners are entitled to share equally, right, in the profits earned by the firm. At the same time, losses are also profits, but they are which profits? Negative profits. And ये right है उनका, क्या right है? To share the profit. And what is their duty? They are liable to contribute equally towards the losses sustained by the firm. Right comes with some duty. अगर प्रॉफिट शेयर करने वाले हो and nothing is decided, तो every partner will also share losses in that ratio.
ऐसे हो सकता है कि प्रॉफिट शेयरिंग का अलग रेशियो हो सकता है, लॉस शेयरिंग का अलग रेशियो हो सकता है। इफ यू हैव डिसाइडेड स्पेसिफिकली, कोई जो आपने डिसाइड किया ना वो होगा। एग्जाम्पल, प्रॉफिट के लिए 4 पार्टनर है, लॉसेस के लिए 3 पार्टनर है, मतलब 1 पार्टनर इज पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, या ही मे बी द ओनली माइनर। सो ऐसे हो सकता है कि शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट इन डिफरेंट रेशियो एंड शेयरिंग ऑफ द लॉसेस इन सम अदर रेशियो, वो हो सकता है। बट डीड है तो वैसे फॉलो करेंगे, अदरवाइज एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली एंड एट द सेम टाइम इट इज हिज ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स लॉसेस इक्वली। आगे, then if there is no agreement, then you should make presumption of the equality and burden of proving that shares are unequal will lie on the party alleging the same। इसका मतलब अगर कोई बोल रहा है नहीं नहीं वी आर नॉट इक्वल पार्टनर, तो हम बोलेंगे पहले डीड दिखाओ, वो बोला डीड नहीं है बट हम इक्वल पार्टनर भी नहीं है, तो नाउ प्रूव, यू हैव टू प्रूव दैट यू गाइज आर नॉट इक्वल पार्टनर्स। ठीक है, कैसे प्रूव करेगा, लॉ डज नॉट टॉक अबाउट दैट कि कैसे प्रूव करना है, बट लॉ बोलते हैं प्रूव अस कि यू आर नॉट इक्वल पार्टनर्स। देन there is no connection between the, yes, there is no connection between the capital contributed by the partners and profit shared by them। समझ में आ रहा है, there is no connection between the part, right, between the proportion in which the partners shall share the profits and proportion in which they have contributed towards the capital of the firm। so what I mean, right, कैपिटल, कोई पार्टनर कैपिटल ज्यादा भी दे सकता है बट उसका पीएसआर कम रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हो सकता है। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट पीएसआर मस्ट बी इन कैपिटल रेशियो। समझ में आ रहा है, पीएसआर नीड नॉट बी इन कैपिटल रेशियो, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दे मे बी इक्वल, दे मे बी डिफरेंट, बिकॉज एट द एंड द प्रॉफिट इज, राइट, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो रहेगा दैट इज द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। मे बी आप बोलोगे जिस रेशियो में आपने कैपिटल लाया है उसी रेशियो में हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो उस केस में आपका कैपिटल रेशियो विल बी इक्वल टू योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट दैट इज नॉट नेसेसरी, यानी इसका मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं, बिकॉज वी हैव डन इट इन अकाउंट्स, राइट। देन सो दिस वाज राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स। अच्छा, देयर वाज वन क्वेश्चन मैं लेता हूं, ठीक है। सो हाँ बोल रहे हैं सर, अगर दो केसेस और बहुत सारी फिर प्रॉफिट इक्वली शेयर होते हैं ना, I cannot hear you, I cannot hear you। सर दो केसेस, पहले केस में अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट इक्वली शेयर है, ठीक है। हाँ बराबर। लेकिन फिर एक साल के बाद आफ्टर वन वर्किंग बिजनेस ईयर वो एक पार्टनर देखता है कि देयर आर 3 पार्टनर्स, हाँ तो ए बी एंड सी, तो ए और बी देखते हैं कि सी अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है। तेरा आवाज नहीं आ रही यार मुझे, आई कैन नॉट हियर यू प्रॉपर्ली, सॉरी यार। अभी अच्छे से आ रही है सर आवाज? हाँ बोला, अभी तो ठीक से तो आ रही है, अच्छे से नहीं बोल सकता बट इट इज बेटर। हाँ तो सर दो केस है, पहले केस में कोई डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो इक्वल पार्टनर्स। हाँ तो लेकिन और 3 पार्टनर्स है, ए हाँ, बी और सी। हाँ फिर आफ्टर वन ईयर ऑफ वर्किंग टुगेदर ए हाँ, और बी देखते हैं कि सी अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, कैन एंड दे वांट टू रिड्यूस हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ ठीक है। they want to reduce the share, then can they do that? यस, अगर कोई, हमने एक देखा ना एक ड्यूटी, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज, एक कहाँ पे तो मैंने अभी वो एक्सप्लेन किया क्या नहीं पता नहीं, राइट, किधर तो हमने एक्टिव, मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही दिखाया, देखो क्या लिखा है इधर, यहाँ पे वो पॉइंट कवर हुआ है, राइट टू टेक एक्टिव पार्ट, बट वेयर ए पार्टनर निग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज द बर्डन ऑफ परफॉर्मिंग सच ड्यूटीज फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस फॉल्स ऑन अदर पार्टनर, द अदर पार्टनर्स हैव राइट ऑफ द कंपेंसेशन। वो उसको प्रॉफिट इक्वली देंगे और बाद में उसे रिकवर भी करेंगे, जो भी रहेगा कि एज यू आर नॉट डन योर वर्क प्रॉपरली, हमें वो काम करना पड़ा, राइट, इन दैट केस कंपेंसेट अस। अब वो कैसे कंपेंसेट होगा लॉ उसके बारे में नहीं बोलता है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स, वो लोग डिसाइड करेंगे। समझ में आ रहा है, तो वैसे पॉसिबल है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब कि ये डीड रहे या ना रहे, ये हर से वैलिड रहेगा ना, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। और
कोर्ट ऑर्डर करती ना सी को कंपेंसेट करने के अगर एग्जांपल यार तुम लोग जो 3 लोग साथ में आए तो ऑब्वियसली दे हैव डिसाइडेड टू वर्क फॉर ईच अदर, एंड अगर कोई इंटेंशनली काम नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली यू विल आस्क फॉर द कंपेंसेशन, अदरवाइज डिसॉल्व द फर्म। क्यों फर्म है? लास्ट रिमेडी इज डिसॉल्व, सबसे अच्छी रिमेडी है। फिर वो बिजनेस करने में क्या फायदा? व्हाई टू टेक अननेसेसरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ समवन एल्स इफ ही इज नॉट रिस्पांसिबल? समझ में आ रहा है? यस सर। नाउ नेक्स्ट आगे लॉ देखो, लॉ बोलता है आप लोगों का एग्रीमेंट है। लॉ पहले तुम लोगों को चूज करने को बोलता है, तुम्हें जो करना है। अगर वो चूज करने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम आता है, राइट, तो लॉ इंटरवीन करेगा। लॉ अदरवाइज इंटरवीन नहीं करेगा। जो क्वेश्चंस आपके बीच में सॉल्व कर सकते हो वो सॉल्व करो, अगर नहीं होता है तो हम इंटरफेयर करेंगे। सिंपल चीज है। आगे राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट हो गया, सिंपल था। उसके बाद राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी है। एज वी नो, राइट, इफ डीड इज साइलेंट, right, partners are not entitled to interest on their capital contributed. However, if deed provides for interest on capital, right, we will give them interest on capital. And one important point is interest on capital is given only and only out of the profits. Only and only out of the profits. I mean, if interest on capital देने के बाद अगर losses हो रहे, that is not allowed. Example, इसका मतलब क्या है? Actually, right, ये accounts की term है, right? मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। इफ यूर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज सपोज 15,000 एंड सपोज यूर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम्स टू एग्जांपल 12,000। तो डू यू हैव सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू पे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? यस सर। पहले तो चेक करो डीड है क्या, एंड इफ डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट कैन बी गिवन ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। सर डीड में लिखा है पार्टनर्स विल गेट इंटरेस्ट एंड दैट इंटरेस्ट कम्स टू 12,000। कैसे कैलकुलेट करना है? दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ अकाउंट्स। सो 12,000 इंटरेस्ट आ रहा है पार्टनर्स का, तो हम उनको कितना देंगे? हम उनको इंटरेस्ट पूरा का पूरा 12,000 देंगे, और 6,000 जो 6,000 बचेगा हम क्या बोल के देंगे? प्रॉफिट्स बोल के देंगे। सो सॉरी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 15,000 था, तो कितना बचेगा? 3,000 बचेगा। सो क्या हुआ? हमने जो 15,000 प्रॉफिट था उसमें से 12,000 इंटरेस्ट एंड कैपिटल दिया एंड 3,000 हमने प्रॉफिट बोल के दिया पीएसआर में। सपोज इंटरेस्ट एग्जैक्टली 15,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्क्स आउट टू बी 15,000। तो कैन आई पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंटायरली? यस। हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देंगे तो पीएसआर कुछ बचेगा क्या? प्रॉफिट के लिए कुछ बचेगा कि नहीं? 15 इंटरेस्ट प्रॉफिट था बिफोर इंटरेस्ट, पूरा का पूरा इंटरेस्ट दे दिया तो अब कुछ बचेगा क्या? नहीं। तो पार्टनर्स को प्रॉफिट बोल के कुछ नहीं मिलेगा, जो भी था वो इंटरेस्ट बोल के मिला। एंड थर्ड केस में सपोज इंटरेस्ट वर्क्स आउट टू बी सपोज 18,000। अब क्या करोगे? हम 12th में महाराष्ट्र बोर्ड वाले, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आईएससी, मैं महाराष्ट्र बोर्ड की बात कर रहा हूं, राइट। महाराष्ट्र बोर्ड वाले गलत करते थे। महाराष्ट्र बोर्ड वाले क्या करते थे? पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे और बोलते थे 3,000 लॉस हो गया। मतलब 15,000 बिफोर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पूरा दे दिया आपने और बोलते 3,000 लॉस है, और पार्टनर्स को वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो लॉस बेयर करना पड़ता था। नो, दिस इज रॉन्ग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। मतलब अगर प्रॉफिट है तो मिलेगा, और राइट, यू कैनॉट गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोर देन योर प्रॉफिट्स। आपके प्रॉफिट्स कितने? 15,000 है, इंटरेस्ट कितना देना है? 18,000। कैन यू गिव 18 आउट ऑफ 15? नो। तो हम कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? हम खाली 15,000 देंगे, राइट। नो, 3,000 पार्टनर्स को मिलेगा ही नहीं, और राइट, सो देयर विल बी नो लॉस। जितने प्रॉफिट थे हमने क्या बोल के दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के दिया। सो 12th महाराष्ट्र बोर्ड की ट्रीटमेंट टोटली रॉन्ग थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो आई सिंपली मीन, राइट, अब हमने क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 18,000 इंटरेस्ट बन रहा था, प्रॉफिट 15,000 था, तो मैं इंटरेस्ट कितना दूंगा? 15,000 ही दूंगा, मैं ज्यादा नहीं दूंगा। देयर विल बी नो लॉसेस बिकॉज आई कैन नॉट गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोर देन माई प्रॉफिट्स। मेरे प्रॉफिट्स 15,000 थे, राइट। हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट करते हैं। जिन्होंने फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स के मेरे जो लेक्चर्स देखे होंगे, जो मैंने अपलोड किए, वहां पे थोड़े उसके, राइट, वहां पे मैंने इन डिटेल में वो एक्सप्लेन भी किया है। दैट इज, हम ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं, P&L अकाउंट करते हैं, और P&L अप्रोप्रिएशन करते हैं इफ देयर इज अ प्रॉफिट। एंड P&L appropriation shows the distribution of the profit
under different heads: interest on capital, remuneration, transfer to reserves, and then at the end profit sharing ratio. अगर आपके प्रॉफिट्स इंटरेस्ट से ज्यादा है, लाइक फर्स्ट केस में प्रॉफिट्स वर राइट, प्रॉफिट्स कितने थे मेरे, एक सेकंड, प्रॉफिट्स 15,000 थे और इंटरेस्ट 12,000 था. व्हेन योर प्रॉफिट्स आर मोर देन इंटरेस्ट, यू कैन पे इंटरेस्ट एंटायरली, रिमेनिंग प्रॉफिट्स पीएसआर में जाएंगे. इफ योर इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स आर इक्वल, जो भी प्रॉफिट्स है इंटरेस्ट बोल के जाएंगे. एंड इफ योर इंटरेस्ट इज मोर देन प्रॉफिट, प्रॉफिट्स विल बी गिवन एज ए इंटरेस्ट. हम 15,000 ही देंगे और इंटरेस्ट बोल के देंगे. और इसका मतलब है राइट, इफ नथिंग इज डिसाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स, क्या लिखा है ध्यान देना, इफ नथिंग इज डिसाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो सोचो ही मत, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं. इफ contract provides for interest on capital, in such case partners get interest on capital at a decided rate. Rate act में नहीं लिखा है, it's your choice. समझ में आ रहा है? They will get interest at a decided rate and that is to be given only and only out of the profits. Means you cannot give interest more than your profit. It is interest on capital if provided in the deed. It is an appropriation of profit. It is appropriation of the profit. समझ में आ रहा है? सो राइट, लॉ के लिए दिस इज मोर देन इनफ. इसका कैलकुलेशन वगैरह अकाउंट्स में आपको इन डिटेल में मिलेगा. अब ध्यान देना क्या लिखा है. द पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कंटेन ए क्लॉज, एग्रीमेंट में कंटेन ए क्लॉज एज टू राइट ऑफ द पार्टनर्स टू क्लेम इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल एट ए सर्टेन रेट. अगर डीड में है तो ही उनको मिलेगा. द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट बी देयर बिफोर ए पार्टनर कैन बी इंटाइटल्ड to interest on monies brought by him in the partnership business. Right? Following elements must be there. ये होना ही चाहिए डीड में, ये होना ही चाहिए. क्या होना चाहिए ध्यान देना, इसमें से एक होना चाहिए. They are not or it, try to understand. An express agreement to that effect. मतलब डीड में स्पेसिफिकली होना चाहिए. There should be express agreement. Right? या तो रिटर्न होना चाहिए या ओरल होना चाहिए. एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट होना चाहिए कि यस इस रेट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा इस रेट से. दैट इज सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, आगे. और चलो एग्रीमेंट नहीं है, इसे कुछ एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है, बट इंप्लाइड है. कैसे इंप्लाइड है? राइट, प्रैक्टिस ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टनरशिप. चेक देयर, आप उनकी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस ये की, इवन तो डीड में कुछ नहीं है, स्टिल दे आर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इट हैज बिकम देयर रूटीन, इट हैज बिकम देयर प्रैक्टिस. तो नाउ इट हैज बीन इंप्लाइड राइट बाय देयर एक्शन. क्या एक्शन से? दे आर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल. समझ में आ रहा है? नाउ थ्रू देयर इंप्लाइड एक्शन इट बिकम एन एग्रीमेंट कि यस पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा. और क्या लिखा है? एनी ट्रेड कस्टम टू दैट इफेक्ट. सपोज कर्नाटका में इट इज अ कस्टम. कर्नाटका में मतलब इंडिया ऑब्वियसली बहुत बड़ी कंट्री, मैं कर्नाटका का एग्जांपल दे रहा हूँ. ऐसे कुछ आई डोंट नो कर्नाटका का क्या है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. सपोज कर्नाटका में ये कस्टम है, ये ट्रेड कस्टम है. बिजनेस में ये जनरली है कि अगर ओनर कैपिटल देता है बिजनेस को तो ओनर को सपोज 8% से इंटरेस्ट मिलेगा. इट इज अ ट्रेड कस्टम. समझ में आ रहा है? इन दैट केस कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट या इम्प्लाइड एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है. राइट, कस्टम बिकम्स एग्रीमेंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड because we follow customs. Try to understand. So agar there is any trade custom, right, they will be entitled to interest. Or a statutory provision which entitles him to such interest. अगर कोई लॉ आपको बोलता है कि राइट ओनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे एज सच इंडिया में नहीं है, कोई ऐसे स्पेसिफिक लॉ नहीं बोल रहा है. राइट, अगर है, मैं बोल रहा हूँ अगर है तो, या कभी जाके ऐसे लॉ आता है तो इन दैट केस पार्टनर्स राइट और ओनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल. सो लॉ देखो ना कितना दूर का सोच रहा है कि हम अकाउंट्स में बोलते खाली अगर एग्रीमेंट है तो, बट लॉ खाली एग्रीमेंट पे नहीं कर रहा है कि अगर कस्टम्स भी देख रहा है, क्या कस्टम्स है उस एरिया में, उस रीजन में, क्या बाकी. बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, आपने अभिषेक सर ने भी आपको समझाया होगा कि लॉ जब हम देखते हैं तो हम हिस्ट्री देखनी चाहिए. बिकॉज लॉ कब बना था? 1930, 1932 में, 1872 में देखा होगा, ये सर ने बोला होगा. बिकॉज आई नो सर जनरली फर्स्ट लेक्चर में क्या सर लेते हैं. सो उन्होंने ये भी बोला होगा कि वी हैव टू ट्रेस बैक टू द हिस्ट्री. हमें हिस्ट्री जाके देखनी पड़ती है कि जब लॉ बनाया गया था तब क्या हुआ था. तो ऑब्वियसली ट्राई टू अंडरस्टैंड राइट. जब एंड लॉ इज ऑलवेज विजनरी भी रहना चाहिए कि आगे क्या होगा.
सो दोनों हमें समझना है। तो खाली आपके एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं, जो कस्टम है, एग्जांपल दिवाली में छुट्टी मिलती है, ये कहाँ पे लिखा है कि दिवाली में छुट्टी मिलती है? आप बोलोगे सर कैलेंडर में लिखा है। अरे इट हैज बिकम ए कस्टम कि दिवाली में छुट्टी मिलती है, कस्टम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे कहाँ पे लिखा नहीं कि दिवाली में छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी, एक कस्टम है, हम दिवाली मनाते हैं, कस्टम है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सो हमारे इधर दिवाली होती है, आप नीचे जाओ वहां पे संक्रांति बहुत बड़ी होती है। हमारे इधर ईद में, बॉलीवुड की ईद में मूवीज रिलीज करते हैं, ईद के दिन पे अपने भाई की मूवी आती है जनरली। साउथ में संक्रांति पे बड़ी बड़ी मूवीज रिलीज करते हैं। तो वहां पे कस्टम है कि संक्रांति बहुत बड़ी से रिलीज करते हैं। इस बार उन्होंने 2 मूवीज रिलीज किए थे इस बार, एक आला वैकुंठपुरम थी और एक सैलारू बोल के मूवी आई थी, और दोनों बिग बॉक्स ऑफिस पे चले। वो ईद पे नहीं करते, बट आप हमारे इधर आओगे तो ईद पे मूवी आती है, कस्टम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कहाँ पे लिखा नहीं है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये प्रैक्टिस बनी है, ये कस्टम्स बने, ट्रेडिशन बना है। अगर ऐसे बिजनेस ट्रेडिशन है, मैं बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का, तो देयर इज नो नीड ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट और इम्प्लाइड एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट है तो ऑलवेज बेटर, ऑलवेज रिमेंबर एग्रीमेंट इज ऑलवेज बेटर, ऑलवेज एंड ऑलवेज। बट नहीं है, बट देयर इज अ ट्रेड कस्टम, इन दैट केस यस यू आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो खाली हमें एग्रीमेंट नहीं देखना चाहिए एज ए ऑडिटर। हम अगर जब सीए होंगे तो खाली एग्रीमेंट नहीं देखना चाहिए, हमने एग्रीमेंट के साथ हमने इन्वायरमेंट भी समझना चाहिए, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, कि हम किस बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो वहां पे क्या हो रहा है, अकॉर्डिंगली हम करेंगे, राइट? एंड इफ देयर इज एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन which entitles such interest, in that case partners are entitled to interest, otherwise they are not entitled to interest. Such interest subject to the contract between the parties is payable only out of the profits. मतलब if nothing is, एक तो पहली बात मैंने क्या बोला, इफ डीड नहीं है, कुछ नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं। डीड में लिखा है यस पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8%, या देयर इज अ ट्रेड कस्टम और देयर इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कि पार्टनर्स को 8% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 8% मिलेगा, बट कैसे मिलेगा? ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। और यहाँ पे भी लिखा है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, इट इज पेएबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब डीड में खाली लिखा है कि पार्टनर्स को 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, बस साइलेंट, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है। तो ये जो 8% मिलेगा दैट विल बी एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, मतलब जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा तो इंटरेस्ट किसी के हालत में नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिखा है? पार्टनर्स may also decide कि interest on capital will be treated as not appropriation but as a charge। वो बोलेंगे कि कुछ भी हो कि हमें इंटरेस्ट पूरा मिलेगा, कुछ भी हो हमें इंटरेस्ट पूरा मिलेगा। अगर ऐसे है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड दैट इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट एंड नॉट P&L अप्रोप्रिएशन। अगर ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसलिए जब मैं अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझाऊंगा, मैं 3 केस से समझाऊंगा। इफ डीड इज साइलेंट, नो इंटरेस्ट। इफ डीड provides for interest on capital, that's it is appropriation of the profit. Deed provides for interest on capital and charge, it is an expense, वो P&L में आएगा ना कि P&L appropriation में। and in that case example, right, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना, right? अभी बात निकली है तो मैं यहाँ पे 2 मिनट में समझाता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। लॉ में भी वही लिखा है, हम लॉ ही फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग के लिए लॉ भी पता होना चाहिए, ध्यान देना, राइट? सो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। सपोज, राइट, सपोज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मैंने 15,000 लिए थे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 15,000 थे, बराबर? एंड माय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्क्स आउट टू बी, राइट, डिफरेंट। मैं देखता हूं तो क्या रहेगा। केस ए, राइट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 15,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्क्स आउट टू बी, सर डीड में कुछ नहीं लिखा है तो मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। देयरफॉर पीएसआर में कितना जाएगा? पीएसआर में 15,000 जाएगा। केस 2, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 15,000 है, डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट वर्क्स आउट टू बी, एग्जांपल 12,000, इंटरेस्ट वर्क्स आउट टू बी 12,000। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा उनको? इंटरेस्ट पूरा का पूरा मिलेगा, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? इंटरेस्ट पूरा का पूरा मिलेगा और प्रॉफिट कितना मिलेगा? 3,000 मिलेगा। प्रॉफिट कितना मिलेगा? 3,000 पीएसआर में जाएगा। केस 3, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 15,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 15,000,
तो 15 का 15 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के जाएगा, प्रॉफिट बोल के कुछ जाएगा क्या? नहीं. केस 4, इंटरेस्ट ऑन बिफोर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 15,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 18,000. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, भले ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 आता है, बट पार्टनर इज नॉट इंटाइटल टू 18,000. पार्टनर्स को कितना मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 15,000 ही मिलेगा, बिकॉज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट एक्सीड द प्रॉफिट्स, राइट. प्रॉफिट बोल के कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. प्रॉफिट बोल के कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. ठीक है, स्क्रीन 3-4 सेकंड लैगिंग पे, सो आई विल टेक, राइट, 2 मिनट में रुकता हूं तो आपको दिखेगा. ठीक है, सो ये चीजें समझ में आनी चाहिए. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो जब कभी भी हम ऐसे करते हैं, राइट, तो हमें पता होना चाहिए अभी तक जो हमने एग्जांपल किए, दे ऑल आर रिलेटेड टू व्हाट, राइट, एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट. हम उनको क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट. सो my interest on capital cannot exceed, right, my interest on capital cannot exceed what, right, my profit, if it is, which it is appropriation of the profit. ठीक है, so अगर, so ये आ गए if deed is silent, interest नहीं मिलेगा, deed provides for interest, बस आगे कुछ नहीं है. and the fifth case यहाँ पे लिखता हूं, deed provides for interest, yes sir, मेरा profit before interest is 15,000, deed provides for interest and interest comes 18,000. and आगे लिखा है partners are entitled to interest at the rate of 8% and it will be treated as charge against profit. deed में लिखा है, जब charge against profit है मतलब आपको पूरा मिलता है, मतलब वो expense होता है, वो P&L में आता है. so in that case partner will get 18,000 interest and there will be loss, and ये loss हम किस रेशो में शेयर करेंगे? हम शेयर करेंगे पीएसआर में. मतलब महाराष्ट्र बोर्ड वाले केस 5 एजम करते थे, ये हमारा महाराष्ट्र बोर्ड था. हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या एजम करते थे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब जितना आता था उतना देते थे, उसके बाद अगर कुछ लॉस है तो लॉस शेयर करेंगे, प्रॉफिट है तो कोई बात नहीं. हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट देते थे. अब क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. इफ डीड इज साइलेंट तो केस ये है, यू वोंट गेट एनी इंटरेस्ट. डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट, deed provides for interest, nothing else, just interest लिखा है, 8% लिखा है, आगे कुछ नहीं, तो it is appropriation of the profit, मतलब you cannot get interest more than your profit. and third, deed provides for interest, at the same time deed also provides that it is charge against the profit, तो आपको जितना इंटरेस्ट है उतना मिलेगा, इसलिए उन्होंने वहां पे लिखा है, राइट. क्या लिखा है देखो, राइट, such interest subject to the contract between the partners, subject to the contract between पार्टनर्स. मतलब अगर पार्टनर्स बोलते नहीं हमें प्रॉफिट, हम प्रॉफिट नहीं, हम चार्ज उसको मानेंगे, हम एप्रोप्रिएशन नहीं, हम चार्ज मानेंगे, तो चार्ज रहेगा. इंटरेस्ट विल बी ट्रीटेड एज चार्ज, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट. इट इज पेएबल ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट इफ अर्न्ड बाय द फर्म. सो वी कंसीडर इट एज एन व्हाट, एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट. तो इंटरेस्ट में 3 केसेस बन गए, ध्यान देना, 3 केसेस. फर्स्ट केस, डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. Deed provides for interest, that's it. In that case, it is appropriation of the profit. Deed provides for interest and also that, right, interest will be treated as charge. तो आपको पूरा interest मिलेगा. So there can be 3 situations for the interest on capital. So, right, interest on capital. उसके बाद interest on loans given by partners, ये भी उनका right है. If partner has contributed in excess of capital as loan, obviously he should mention it is a loan. जब देते टाइम उसके लोन है, समझ में आ रहा है? In that case, capital is different and loan is different. Loan by partner to the firm. And in, right, if there is no contract between the partners, partners are entitled to receive interest at the rate of 6% per annum on loan advanced by him. That rate is given in the law, that rate is given in the act. And that interest is not appropriation of the profit, that interest is a charge against the profit. मतलब राइट, वो इंटरेस्ट आपको हमेशा पूरा मिलेगा, उसके बाद लॉस आएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा. एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज डेबिटेड टू P&L एंड नॉट P&L अप्रोप्रिएशन. क्या बोला, ध्यान देना, देयर इज अ डिफरेंस. कैपिटल इज डिफरेंट एंड लोन गिवन बाय पार्टनर इज डिफरेंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलता है, अगर डीड है में नहीं है तो नहीं मिलेगा. डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, nothing else, it is appropriation. Deed provides for interest on capital and charge,
तो पूरा मिलेगा, इन एनी केस फिर लॉस होगा तो भी आपको पूरा मिलेगा अगर चार्ज रहेगा तो. What about interest on loan? Interest on loan is always and always charge against profit. I mean, भले आपके प्रॉफिट कितने भी क्यों ना हो, आपको जिस पार्टनर ने लोन दिया है उसको 6% के हिसाब से राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही मिलेगा. Yes, if partner provides some different rate, 6% से ज्यादा या 6% से कम, in that case obviously we will follow what deed के हिसाब से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. Sir, what is difference right between capital and loan? Loan is something over and above the capital, right? अलग से अगर फर्म को जरूरत है पैसों की तो पार्टनर it may give as a loan. So क्यों पार्टनर्स लोन देते हैं? एक तो even if deed is silent as to interest on capital, right? Interest on capital पार्टनर्स को नहीं मिलता है तो पार्टनर will preferably give as a loan because in that case he will get at least 6%. उसको 6% तो मिल जाएगा. This is one reason. दूसरा, when firm gets dissolved, जब हम रिपेमेंट करते हैं तो रिपेमेंट के इसमें अगर आपने 12th में किया होगा, राइट, पार्टनर के लोन इज रिपेड बिफोर द पार्टनर्स कैपिटल. सो पार्टनर जो एक्स्ट्रा पैसा डाल रहा है वो पहले उसको रिपे होगा देन द कैपिटल, राइट टू अंडरस्टैंड. सो अगर इंसॉल्वेंट हो जाती है फर्म तो देयर इज मोर चांस ऑफ लोन रिपेमेंट ओवर द कैपिटल रिपेमेंट. तो पार्टनर लॉस सस्टेन नहीं करेगा या करेगा तो टू दैट एक्सटेंट कम करेगा अगर वो कैपिटल बोल के दिया होता. So, and that is the reason a partner if contributes over and above the capital, generally he will contribute as a loan. अगर आप कभी पार्टनर होते हो एंड सपोज आपने डिसाइड किया कि हर पार्टनर ने 3 लाख फिक्स कैपिटल डालना है एग्जांपल, और आप ज्यादा डालते हो तो जो एक्स्ट्रा डाल रहे हो ना, गिव इट एज ए लोन. इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल. ठीक है, या आप आपके क्लाइंट को एडवाइस करो कि इसको लोन टू फर्म बोल के देना अगर वो पार्टनर है किसमें. समझ में आ रहा है? ओके सर, ये 6% पर annum है. इज इट अ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट? It is always and always simple interest. Sir, what if right partnership dissolve हो जाती है? Example, सर पार्टनरशिप से आज डिसॉल्व हो गई यहाँ पे एंड हम पार्टनर्स का कैपिटल यहाँ पे सेटल करने वाले, सबका डिसोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, पार्टनर डिसोल्यूशन की बात कर रहा हूँ. तो इस पीरियड में क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या? सर डीड में लिखा है पार्टनर्स विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. यहाँ पे फर्म डिसॉल्व हो गई एंड यहाँ पे पूरे सेटलमेंट हो रहा है. Partners are not entitled to interest on capital after the date of dissolution. समझ में आ रहा है? However, मतलब I said if nothing is provided, right? जस्ट डीड बोलती कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा. डिसोल्यूशन के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीजेस, उसके बाद नहीं मिलेगा. डिसोल्यूशन के डेट तक मिलेगा. डिसोल्यूशन के दिन सेटलमेंट नहीं होती. इट टेक्स टाइम. हम ऑक्शन वगैरह करेंगे, राइट, सब चीजें होगी, उसके बाद सबका रिपेमेंट होगा. इट टेक्स टाइम. लमसम जैसे 12th में लमसम में डिसोल्यूशन किया वैसे एक्चुअल में होता नहीं. पीस मिल में डिसोल्यूशन होता है. इन एफआई यू विल लर्न पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन. पीसेस में डिसोल्यूशन होता है. समझ में आ रहा है? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट. आई मीन इस पीरियड में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा. बट अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो ऑब्वियसली इस तारीख तक उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा एट ए 6% पर एनम, राइट. दैट इज द डिफरेंस. अब मैं यहाँ पे आके एक एक चीज समझाता हूँ. वेयर ए पार्टनर मेक्स फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म एनी एडवांस बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, ही इज इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन सच एडवांस एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. Such interest is not only payable out of the profits, मतलब ये appropriation just it's not an appropriation, but also out of the assets of the firm, that is charge against profit. Interest on loan is always paid full, right? Always and always paid in full, even if it leads to losses, right? While interest on capital ceases to run on dissolution, interest on loans given the partners keeps running even after dissolution up to the date of payment, because that is loan and that is not a capital. So that is a difference. Now उसके बाद जो सिंपल राइट से पहले लेता हूँ, राइट टू बी इंडेमनिफाइड होल्ड पे रखो थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं, राइट. यस, जो आपको पता है पहले वो कवर करता हूँ, ठीक है. अब राइट ऑफ ए पार्टनर एज एन एजेंट ऑफ द फर्म. यस, एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म. If he takes any action in the ordinary course of the business within his authority and in the name of the firm, ये 3 conditions थे हमने फर्स्ट यूनिट में देखा. If a partner takes any action in the name of the firm in the ordinary course of the business and for right, it is within his authority, his actions will bind the firm and he will be treated as an agent of the firm. So it is a right of a partner to be act as an agent. Every partner for the purpose of the business of the firm is an agent of the firm.
and subject to the provisions of the IPA, right, an act of the partner which is done to carry on in usual way, ordinary course of the business, right, business of any kind carried by the firm. जो फर्म बिजनेस कर रही है वही उसमें उसका ही एक खड़ा काम है, सेम सिमिलर काम है, राइट, बाइंड्स द फर्म. समझ में आ रहा है? सो इफ पार्टनर हैज टेकन एक्शन विद इन हिज अथॉरिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस एंड इन द नेम ऑफ द फर्म, अगर ये तीन चीजें है तो his actions binds the firm and it is his right to act as an agent of the firm. Then ये right हो गया? Yes sir. ये भी आपको पता है. नंबर 10, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ये मैंने बहुत बार रिपीट किया है, राइट, एग्जांपल्स में भी, राइट, कैन यू डिनाई द एडमिशन? एग्जांपल ए बी सी पार्टनर एंड डी को पार्टनर लेना है. ए एंड बी वांट्स यस कि उसको पार्टनर लेना, डी डज नॉट वांट टू बी पार्टनर. It is your right to deny the admission of a new partner. No new partner to be introduced without your consent. Try to understand. It's my right to avoid the admission. क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना. Every partner has a right to prevent the introduction of the new partner unless he consents to that or there is a express terms in the contract pertaining to such introduction. अगर किसी पार्टनर को एडमिट करना है हमें फर्म में, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर किसी को हमें एडमिट करना है तो हम बोलते हैं कंसेंट ऑफ एवरी एग्जिस्टिंग पार्टनर इज रिक्वायर्ड. इसका मतलब ए पार्टनर हैज अ राइट टू प्रिवेंट द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर विदाउट हिज कंसेंट. या अगर डीड में लिखा गया है कि ऐसे केसेस में हम नया पार्टनर ले लेंगे, एक्सप्रेस टर्म्स है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के, इन अकॉर्डिंग टू दोस टर्म्स, मतलब ऑब्वियसली उस टर्म्स को आपने एग्री किया था. व्हेन यू बिकम पार्टनर यू साइन द डीड, मतलब यू आर एडमिटेड टू दोस टर्म्स, मतलब उस टर्म्स के हिसाब से किसी को पार्टनर ले रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर गिविंग द कंसेंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड बाय द टू वेज. वन, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स और अकॉर्डिंग टू द डीड. डीड मतलब आपकी कंसेंट है, समझ में आ रहा है. ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप बाय द टू वेज. वन, according to the consent of all partners or as per the express provisions, right, in the deed, partnership deed. अगर वैसे नहीं है, it is your right to prevent such admission. अगर आपको लग रहा है किसी पार्टनर को ले रहे हो एंड आपके कंसेंट के विदाउट ले रहे, it is your right to prevent that admission. समझ में आ रहा है? So no new partner to be introduced without your consent. That is your right. Take objection, right, at the time of, right to take objection at the time of admission of a partner, new partner without your consent. No liability before joining. ये भी मैंने माइनर पार्टनर्स के केस में बोला था. मैंने बोला था कि जिस दिन मैं इस दिन पार्टनर हो गया, इसके आगे वाले एक्ट्स के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा. मेरी लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, ओके, बट राइट, मैं मेजर पार्टनर हूं, मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बट for all those acts done after my admission, in liabilities के लिए I am not liable. Try to understand. मेरी liability retrospectively applicable नहीं होती, मेरी liability prospectively होगी. The date from जिस दिन मैं admit हो रहा हूँ उस दिन के बाद. हाँ, अगर पार्टनर खुद बोलता है कि I will be liable for the previous acts of you as well, in that case he is liable. If there is a express provision कि कोई भी नया पार्टनर आएगा वो प्रीवियस एक्ट के लिए भी क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा, एंड नया पार्टनर उसको एग्री भी करता है तो ऑब्वियसली इट इज विथ योर कंसेंट, बिटवीन योर ऑल कंसेंट, तो वो एप्लीकेबल रहेगा. बट इफ डीड इज नॉट देयर, डीड इज साइलेंट, इन दैट केस लॉ विल प्रिवेल, एक्ट विल प्रिवेल. एक्ट सेज you are responsible, right, for the prospective dates and not retrospective dates, and it is your right, not to be liable for the acts, liabilities, dates of the firm before your admission. A person who is introduced as a partner into the firm is not liable for any acts of the firm done before he became partner, except minor partner के केस में क्या होता है, the day he decides to be a partner into the firm. section 30, याद रखो section 30 नाम, एटलीस्ट वो तो सेक्शन नंबर तो याद रहना चाहिए. section 30 में क्या लिखा है कि within 6 months on attaining the majority, right, he has to decide whether he wants to become a partner or not, or within 6 months from the date, right, when he first come to know about his admission,
उसके भीतर उसको डिसाइड करना है वेदर ही वांट्स टू बिकम पार्टनर और ही डज नॉट वांट टू बिकम पार्टनर. अगर उसको पार्टनर होना है, अगर उसने डिसाइड किया है, ही मे गिव नोटिस और मे नॉट गिव नोटिस, नहीं देता तो भी अपने आप वो पार्टनर होने वाला है, राइट. इन सच केस, राइट, his liabilities are he is liable for retrospective liability as well from the date he was admitted to the benefits of the partnership. Except that case, any other partner, right, becomes liable for the debts of the firm from the date he became partner and not the previous debts. Then ये भी आपको मैंने बोला है, राइट, ये मैंने पार्टनरशिप एट विल के टाइम बोला है. राइट टू रिटायर, राइट, राइट टू रिटायर. अगर मुझे रिटायर होना है, राइट, तो it is a right of every partner to retire. Yes, a partner has a right to retire and their retirements are in 3 ways. अगर किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को रिटायर होना, इट इज हिज राइट. आप उसको बोल सकते नहीं, तू रिटायर नहीं हो सकता, ऐसे नहीं. इट इज हिज राइट एंड ही कैन रिटायर बाय वे ऑफ 3 मेथड्स, राइट. देयर आर 3 वेज ऑफ द रिटायरमेंट. एक, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ये तो हमेशा रहेगा, with the consent of all. वो बाकी सब पार्टनर्स को बोलता है I want to retire and every partner gives their consent. Or in accordance with the express agreement between the partners. ठीक है. एग्जाम्पल, आपने एक पार्टनर को बोला था एबीसी में से, जब पार्टनरशिप बनी थी तो ऐसे डिसाइड होता कि 2020 में रिटायर होगा एंड 2020 में ए रिटायर्स. इट इज एज पर डीड. हाँ, उसको एक्सटेंड करना है और बाकी पार्टनर्स एग्री होते तो कोई दिक्कत नहीं ना, दैट कैन बी एक्सटेंडेड बिकॉज़ अगेन इट इज एग्रीमेंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंसेंट सबकी है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू कैन रिटायर फ्रॉम ए फर्म, राइट, एज पर योर विश. इट इज योर राइट प्रोवाइडेड you retire with the consent of all partners or in accordance with express agreement between the partners. आपने जो agreement किया accordingly आप retire हो सकते हो. और right, where partnership is at will by giving notice in writing to all the partners of his intention to retire. Right, हमने partnership at will में क्या देखा था? If you want to dissolve the firm, give right notice in writing that you want to dissolve the firm and the date mentioned in that notice, उस तारीख से firm stands dissolved. अगर डेट नहीं मेंशन किए तो डेट ऑफ सर्विंग द नोटिस, कम्युनिकेटिंग द नोटिस इज द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. दैट नोटिस कैन नॉट कंटेन द प्रायर डेट. ये मैं बोल रहा हूं, अब याद रहना चाहिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो पार्टनरशिप एट विल के टाइम मैंने बोला था कि डिसोल्यूशन के मेथड बोले थे उसकी. मैं इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, a partner can retire, right, by giving notice to all the partners, and in that case he cannot take back that notice obviously with the consent of other partners. Without the consent of other partners, so retirement की notice पीछे भी नहीं ले सकता. Same as dissolution. समझ में आ रहा है? So अगर ये आपके पास right to retire is your right, ये आपकी मर्जी है, right, communicate all the partners, take their consent and retire, or रिटायर एज पर द एक्सप्रेस एग्रीमेंट, जैसे आपने डिसाइड किया. कभी कभी ऐसे होता है कि जानबूझ के हम डालते हैं कि बीच में कोई रिटायर नहीं होगा. कि एग्जांपल आपको पता है कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो वी हैव टू सेटल हिज अकाउंट, तो वी हैव टू फाइंड आउट हिज शेयर इन द प्रॉफिट वगैरह. ये सब हमने 12th में किया था, राइट. एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो हमें प्रॉपर फाइनल अकाउंट्स करने पड़ेंगे, बैलेंस शीट वगैरह सब करनी पड़ेगी टिल दैट डेट. डोंट यू एग्री विथ मी? नो, राइट. बिकॉज हमें अगर उसका सेट जैसे हमने 12th में कर रहे थे, इतना सिंपल तो नहीं रहेगा कैलकुलेशन. एक्चुअली अगर सपोज वो इन बिटवीन रिटायर होता है तो हमें उस दिन तक का सब ढूंढना पड़ेगा. तो वी विल प्रिपेयर एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम P&L अकाउंट, एक हम ड्राफ्ट बनाएंगे एंड अकॉर्डिंगली वी विल ट्राई टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड हम उसका अकाउंट सेटल करना ट्राई करेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो टू अवॉइड सच अननेसेसरी थिंग्स, ये अननेसेसरी नहीं है बट ये हेक्टिक कर देता है आपका शेड्यूल. आप क्या बोलोगे, किसी को रिटायर होना है ना तो ईयर एंड में रिटायर हो एंड ही शुड गिव 1 month एटलीस्ट नोटिस. 1 month पहले उसने बोलना चाहिए हिज इंटेंशन टू रिटायर. इन दैट केस कोई आके बोलता है मुझे रिटायर होना है तो 1 month के बाद तो रिटायर हो सकता है. एंड जानबूझ के ऐसे टर्म्स होते हैं टू अवॉइड इनकन्वीनियंस, कि अगर किस डेथ के लिए ये टर्म नहीं हो सकती कि तू 31 मार्च पे मर, ऐसे टर्म्स नहीं हो सकती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. फिजिबल टर्म्स होनी चाहिए, कुछ भी अननेसेसरी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए. समझ में आ रहा है? सो आई सिंपली मीन हमने एक डिसीजन ली है कि कोई भी रिटायर होगा तो 31 मार्च पे रिटायर होगा एंड इन दैट केस ही शुड गिव 1 month नोटिस.
ऐसे हमने एक्सप्रेसली डिसाइड किया है, और एवरी पार्टनर हैज गिवन कंसेंट, तो यू कैन प्लान योर रिटायरमेंट ऑब्वियसली. तो इन दैट केस यू विल रिटायर एज पर द एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन यू, राइट, या तो विद द कंसेंट. अगर एग्जांपल एक्सप्रेस एग्रीमेंट कुछ अलग बोलता है एंड बाकी आप बोल रहे हो मुझे अर्जेंट रिटायरमेंट चाहिए, एंड इफ अदर पार्टनर्स एग्रीज तो हो सकता है ना. मैं एग्जांपल देता हूँ, राइट. व्हेन आई, राइट, जब फर्स्ट टाइम, राइट, मैं एचडीएफसी में पहले काम करता था. यू इट्स रिलेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम हर चीज में लॉ को नहीं लेके आ सकते. हम ट्राई क्या करते हैं, हर चीज में लॉ के लेके आए. सीखते टाइम हर चीज में लॉ को लेके आते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में हम लॉ से दूर रहते हैं या कोर्ट से दूर रहते हैं, बिकॉज वी नो दैट इज नॉट द एडवाइजेबल रूट, बिकॉज इट विल टेक टाइम एंड एवरीथिंग. तो हम जब खुद को रियल लाइफ में रखो ना, अगर रियल लाइफ में होते तो आप क्या सोचते, वैसे सोचो, ठीक है. देन सो क्या क्या देखा, राइट टू, राइट, प्रिवेंट एडमिशन विदाउट योर कंसेंट, right to retire, right, and right to act as an agent. ये भी राइट्स मैंने पहले डिस्कस किया. राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड. किसी ने मुझे पूछा था, अगर कोई पार्टनर मिसबिहेव करता है, कोई अननेसेसरीली डिलेज करता है काम में, अननेसेसरीली ही बिकम्स लाइक प्रॉब्लम व्हाइल कैरिंग ऑन ए बिजनेस, जानबूझ के कर रहा है, जो ड्यूटीज है वो जानबूझ के ब्रेक करता है, राइट, it seems his intention is not to continue with the partnership. अगर उसका इंटेंशन होता तो ऑब्वियसली ही विल कोऑपरेट. ऐसे केसेस में क्या खाली डिसोल्यूशन एक ऑप्शन है क्या? कांट वी रिमूव हिम? यस, वी कैन एक्सपेल हिम. हम उसको लात मार के बाहर निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट. एक, डीड शुड प्रोवाइड फॉर दैट. सेकंड, दैट शुड बी डन विथ ऑल अदर पार्टनर्स कंसेंट, and that should be done in good faith. फर्म के बेनिफिट के लिए करना चाहिए. गुड फेथ मतलब हमने उसको नोटिस देनी चाहिए, वी शुड गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, हमने उसकी बाजू समझ के लेनी चाहिए. ऐसे हो सकता है जेन्युइनली कुछ रीजन होगा, समझ में आ रहा है. तो राइट टू एक्सपेल है, क्या बोल रहा हूँ, राइट, हम एक्सपेल कर सकते हैं किसी को, प्रोवाइडेड दैट, राइट, एग्रीमेंट हमें वो देता है, राइट. हाउएवर कभी कभी सच राइट्स कैन बी मिसयूज्ड. होते हैं ना कितने बार मिसयूज, कि चलो एग्रीमेंट में लिखा है कि हम किसी को निकाल सकते हैं, तो अगर किसी पार्टनर का किसी से नहीं जम रहा है इसलिए उसको निकालना है, और वो सब बाकी लोगों को साथ में लेके आता है और उसको निकाल देता है. तो वो जेन्युइनली बोल रहा है कि नहीं, ये मुझे नहीं निकालना चाहिए था बट मुझे निकाला, तो doesn't he have right not to get expelled? Yes, he has a right not to get expelled, right. अगर expulsion is with a fraudulent intention, it is not in good faith, आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे उसकी बाजू रखने की, यू आर नॉट गिविंग हिम राइट टू बी हर्ड. ऐसे केसेस में, राइट, सच एक्सपल्शन इज नॉट वैलिड एंड ही हैज राइट टू ऑब्जेक्ट सच एक्सपल्शन, राइट. तो क्या लिखा है देखो, राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड. ए पार्टनर हैज अ राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, राइट. यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है. वो हम एक्सपल्शन में सीखेंगे. सेव इन, राइट, इन एग्जिस्टेंस ऑफ गुड फेथ, राइट. क्या लिखा है उन्होंने, इट इज राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, राइट. सेव इन मतलब एक्सेप्ट, मैंने बोला एक्सेप्शन होता है. प्रोविजो भी, प्रोवाइडेड, प्रोविजो आर एक्सेप्शंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और एडिशनल कंडीशन. तो इट इज राइट नॉट टू एक्सपेल्ड, एक्सेप्ट मतलब हर पार्टनर का राइट है कि उसको बाहर ना निकाला जाए. एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्शन है, इट इज एक्सरसाइज इन गुड फेथ. ये जो मेजोरिटी ने जो डिसाइड किया है, दैट इज डन इन द गुड फेथ, राइट, ऑफ द पावर्स कंफर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. सो इट इज अ राइट नॉट टू गेट एक्सपेल्ड बाय द मेजोरिटी वोटिंग अगेंस्ट यू, राइट. ये आपका राइट है, एक्सेप्शन है उस राइट को. क्या एक्सेप्शन है कि इफ दैट राइट हैज बीन एक्सरसाइज इन गुड फेथ एंड एज पर कॉन्ट्रैक्ट, then that is you can, right, you get expelled from the firm. Try to understand. एक होता है notwithstanding. Notwithstanding मतलब in spite of anything, in spite of. Suppose ऐसे लिखा है notwithstanding anything contained. Suppose ये मैं सेक्शन 20 की बात कर रहा हूं और लिखा है notwithstanding anything in section suppose 10,
सेक्शन 20 में लिखा है नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग मेंशन इन द सेक्शन 10 दिस इज दिस, ऐसे डैश डैश डैश, इसका मतलब 20 विल ओवरराइड 10। बोल रहा है 10 में जो लिखा है वो जाने दो, ये रहेगा। सो नॉट विस्टैंडिंग मतलब इन स्पाइट ऑफ, मैं जब भी लॉ पढ़ता हूँ नॉट विस्टैंडिंग देखता हूँ तो मेरे दिमाग में इन स्पाइट ऑफ आ जाता है। सो मैं बोलता हूँ जो 20 में नॉट विस्टैंडिंग लिखा है तो 20 विल प्रिवेल ओवर 10। एंड दूसरा होता है प्रोविजो। प्रोविजो प्रोविजो मतलब एक्सेप्शन और एडिशनल कंडीशन, जो लिखा है उसको एक्सेप्शन है या जो लिखा है उसमें और कंडीशन डालनी है तो हम प्रोविजो लिखते हैं। आगे आ जाएगा कहाँ पे, तो जब आएगा तो और डिटेल में समझाऊंगा, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। मैंने बोला कि इट इज योर राइट नॉट टू गेट एक्सपेल्ड बाय द मेजॉरिटी except that majority has acted in a good faith and as per right given by the contract। वही तो हम एक्सपेल्शन में सीखेंगे। आगे जाओगे ना तो आपको एक्सपेल्शन का मिल जाएगा, मैं दिखाता हूँ चाहिए तो आपको, ठीक है। सो आगे जाओगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेप्शन का। क्या लिखा है एक्सेप्शन में, एक्सपेल्शन में देखो, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ यहाँ पे। सेक्शन 33 बोलता है एक्सपेल्शन के बारे में, किधर गया, यस सेक्शन 33 में लिखा होगा। अकाउंटिंग के लिए एक्सपेल्शन हो या रिटायरमेंट हो, इट इज वन एंड द सेम, देयर इज नो डिफरेंस। एक्सपेल्शन में क्या लिखा है देखो, ए पार्टनर मे बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप सब्जेक्ट टू 3 कंडीशंस। सब्जेक्ट टू 3 कंडीशंस, क्या 3 कंडीशंस है देखो, राइट। लिखा है द पावर ऑफ द एक्सपेल्शन ऑफ ए पार्टनर शुड बी कंफर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। यू मस्ट हैव राइट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू। डीड में लिखना हो चाहिए कि यू कैन एक्सपेल समवन। सेकंड, that has to be done by the majority and that has to be done in the good faith। and what do you mean by good faith? What do you mean by good faith? Good faith मतलब the expulsion must be in the interest of the partnership। पार्टनरशिप के भले के लिए एक्सपेल करे उसको, खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं, सबके बेनिफिट के लिए। सेकंड, बी ये पार्टनर टू बी एक्सपेल्ड इज सर्व्ड विद ए नोटिस, आपने उसको नोटिस दी है। एंड थर्ड, वी हैव गिवन हिम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अगर ये 3 केसेस होते तो गुड फेथ है, अगर इनमें से एक भी नहीं होता दिस इज एंड है और नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ट्राई टू राइट, तो हम एक्सपेल कर सकते हैं। अकाउंटिंग के लिए एक्सपेल्शन रिटायरमेंट इज वन एंड द सेम, बट लॉ में अलग है। आप रिटायर होते हो मतलब खुद होके विलिंगली रिटायर हो रहे हो, समझ में आ रहा है। एंड एक्सपेल मतलब उनके विलिंग से आप बाहर जा रहे हो, आप उनको आपको धक्के मार के निकाल रहे हैं। समझ में आना चाहिए दोनों में डिफरेंस, ठीक है। सो राइट, वही मैंने लिखा, राइट नॉट टू गेट एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म, राइट, ओनली इफ राइट that expulsion is not in right good faith and not as per the right given by the contract। उसके बाद राइट, अब दूसरा राइट टू बी इंडेमनिफाइड। टू बी इंडेमनिफाइड, इंडेमनिफाई वर्ड मीनिंग आपको पता है, आपने इंश्योरेंस में सीखा होगा। टू इंडेमनिफाई मतलब टू कंपेंसेट, टू इंडेमनिफाई मतलब टू मेक द गुड लॉस। एग्जाम्पल, अगर मैंने व्हीकल के अगेंस्ट इंश्योरेंस लिया है एंड एक्सीडेंट होता है एंड इन दैट एक्सीडेंट जो भी लॉस होगा दैट लॉस विल बी कंपेंसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, दे इंडेमनिफाई मी। समझ में आ रहा है, इंडेमनिफाई, टू इंडेमनिफाई मतलब टू मेक द गुड लॉस, टू कंपेंसेट इन सिंपल वर्ड। एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, ज्यादा भी सोचने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल, अपने ऑफिस में जो रतन है वो क्लास के पैम्पलेट बांटने के लिए वाडिया कॉलेज जाता है, सेंट मीरा जाता है, बीएमसीसी जाता है, अलग अलग जगह पे जाता है। नाउ ही ट्रेवल्स बाय सपोज पीएमटी, ही ट्रेवल्स बाय ऑटो और ही ट्रेवल्स बाय हिज ओन व्हीकल। तो वो ओन व्हीकल के लिए ही विल बी इंकरिंग व्हाट, पेट्रोल एक्सपेंसेस। तो ये जो एक्सपेंस कर रहा है राइट, इट इज हिज राइट टू गेट रिम्बर्स फ्रॉम द ऑफिस, बिकॉज हम उसको, वो खुद के काम के लिए नहीं जा रहा है, वो अपने क्लास के काम के लिए जा रहा है। तो इट इज हिज राइट टू रिम्बर्स, टू गेट दैट रिम्बर्स, और इट इज हिज राइट टू गेट इंडेमनिफाइड। So in such cases, try to understand, we do reimburse those expenses. So he is doing something for us, it is his right to get indemnified. Try to understand. अब पार्टनर के केस में देखते हैं। सपोज सब पार्टनर्स बैठे या ऑफिस में एक पार्टनर और क्रेडिटर आता है एंड ही, हमें उसको 30,000 रुपीज पे करने। पार्टनरशिप फर्म, अभी हम तो बैंक में पैसे डालते होंगे, थोड़ी जेब में लेके घूमते होंगे,
तो अकाउंटेंट बोलता है अभी मेरे पास खाली 10,000 है, और दूसरा पार्टनर बोलता है ठीक है कोई नहीं, ये 20,000 मेरे से ले ले, एंड फर्म से 10,000 प्लस पार्टनर ने खुद के जेब से 20 दिए और हमने क्रेडिटर को सेटल किया. डोंट यू थिंक नाउ दिस इज द राइट ऑफ द पार्टनर टू गेट इंडेमनिफाइड? उसको वो रिम्बर्स होना चाहिए. डोंट यू थिंक? यस, बिकॉज ही हैज गिवन इट आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस एंड इट इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस. तो ऐसे केसेस में इट इज राइट टू बी इंडेमनिफाइड. समझ में? एक एग्जांपल दिया. दूसरा एग्जांपल, राइट, पार्टनर है, पार्टनर मार्केट में जाता है एंड वहां ऑफिस में कॉल करता है कि ऑफिस के लिए कोई चीजें चाहिए क्या, स्टेशनरी वगैरह चाहिए क्या, गुड्स चाहिए क्या, मैं लेके आता हूँ. और वो सपोज 20,000, 30,000, 40,000 के गुड्स लेके आ गया फर्म के लिए. नाउ ही पेड आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट. बाद में उसको रिम्बर्स मिलेगा ना मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा. इट इज हिज राइट. So he is incurring expenses in the ordinary course of the business for the firm out of his pocket. It is his right to get indemnified. This is one example. दूसरा एग्जाम्पल, ऑफिस में आग लग गई, पार्टनर वहां पे मौजूद है, पार्टनर वहां पे मौजूद है, फायर लग गई, उसने फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया, वो आ गए, राइट, ही टुक नेसेसरी स्टेप्स, राइट, एंड राइट वो फायर बुझा दी गई, सब हो गया. जिन लोगों ने उसको हेल्प की उन्होंने उनको थोड़ा पैसे दे दिए. सपोज फायर ब्रिगेड जनरली वो नहीं लेते, बट उसने सपोज एग्जांपल 5,000 रुपए दे दिए. मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, राइट. सपोज नाउ he has given 5,000 rupees to fire brigade person. Don't you think कि these expenses are to be, ये इमरजेंसी में उसने खर्चे किए, don't you think? तो now these expenses have been incurred, right, for the business of the firm only. आप बोलोगे सर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं, ये इमरजेंसी हो गई, बराबर. बट अगर ये सपोज उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती तो भी उसने वही किया होता ना. तो उसने फर्म के लिए किया तो क्या गलत किया? He actually treated the property of the firm like his own and उसने एक्शन ले ली. एक्चुअली उसने अच्छा किया फर्म के लिए. He incurred some expenses, he incurred some liability for the benefit of the firm in emergency. एग्जाम्पल, लॉकडाउन होने वाला है, एग्जाम्पल लॉकडाउन होने वाला है, उसको पता है, एंड वो फर्म के लिए गुड्स वगैरह परचेस करके लेके आ गया, एंड ऑब्वियसली इन दैट पीरियड ऑफ टाइम की प्राइस ज्यादा होती. एग्जाम्पल क्या बोल रहा हूँ, गुड्स थे 10,000, राइट, ही पेड 10,000, एक्चुअली गुड्स की प्राइस थी 4,000. बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, एग्जाम्पल, राइट, प्राइजेस हैव इन्फ्लेटेड टू 10,000. बट ही हैज परचेस इट फॉर द फर्म. He has purchased it for the firm. Now this is emergency. अब क्या हो रहा है कि अगर हम गुड्स नहीं परचेस करेंगे तो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट होगा. This can be in lakhs, this can be in thousands. मैंने सिंपल रखा एग्जांपल. Now इमरजेंसी में हम परचेस कर रहे हैं, ऑर्डिनरी है, डेली रूटीन है, कुछ नहीं, लॉकडाउन वगैरह नहीं, एकदम सब कुछ इजीली चीजें मिल रही, सब हो रहा है. तो ऑब्वियसली 4,000 की चीज 10,000 में लेगा तो बाकी पार्टनर बोलेंगे तूने 6,000 क्यों ज्यादा डाले. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम तुझे 4,000 ही देंगे, हम 10,000 नहीं देंगे. बिकॉज अगर ऑर्डिनरी कोर्स में ये कितने में मिलती, 4,000, बट नाउ इट इज एन इमरजेंसी एंड ही हैज टू पे 10,000. इन दैट केस ही इज इंटाइटल्ड टू 10,000. बिकॉज अगर वो खुद भी लेने जाता खुद के लिए तो भी 10,000 ही देता. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ यू एक्ट इन इमरजेंसी फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, इन दैट केस यू आर इंटाइटल्ड टू, राइट, व्हाट, बी पेड. मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं. अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, रूटीन है, कुछ ऐसे अलग इमरजेंसी वगैरह नहीं है, तो फर्म उसको 4,000 ही देगी, ना कि 10,000. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज हिज राइट टू ओनली क्लेम 4,000 एंड नॉट 10,000. बट अगर वो इमरजेंसी में कुछ ऐसे काम करता है तो इन दैट केस इट इज राइट टू गेट 10,000. एग्जाम्पल वही है, बट सिचुएशन चेंज हो गई. एक ऑर्डिनरी कोर्स हो रहा है, एक इमरजेंसी हो रहा है. ऑर्डिनरी कोर्स में उसको 4,000 ही मिलेंगे, बट इमरजेंसी में उसको 10 का 10 मिलेगा. समझ में आ रहा है? तो अब ध्यान देना, राइट टू बी इंडेमनिफाइड, राइट, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म in respect of the payments made and the liabilities incurred by him in ordinary and proper course of, right, proper conduct of the business of the firm. मैंने बोला कि जब क्रेडिटर आया, राइट, हम उसको पे कर रहे, इट इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, पार्टनर ने उसके जेब में से 20,000 दिया, बाद में ही कैन क्लेम दैट 20,000. समझ में आ रहा है? देन सेकंड, a partner has an authority, it is his right in an emergency, it is his right. क्या राइट है? कोई इमरजेंसी आती है, फायर लग गई, वो बोलता है जाने तुम, सब पार्टनर्स नहीं है,
बाद में देखेंगे, वो देख रहा है ऐसे. इट्स नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. यू आर ए पार्टनर, यू शुड टेक ड्यू केयर. इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू विल कॉल राइट फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह, उनको बुलाओगे, राइट. आप प्रॉपर स्टेप्स लोगे. यू विल ट्राई टू मिटिगेट द फायर. आप प्रॉपर स्टेप्स लोगे. दैट इज ए नेचुरल, लाइक एक रैशनल पर्सन टेक्स स्टेप्स. वही आपसे भी एक्सपेक्टेड है. ड्यूटी है आपकी. तो अगर ड्यूटी है तो उसके साथ अगर आप कोई एक्सपेंस करते हो, इट्स योर राइट टू गेट रिम्बर्स्ड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मतलब ड्यूटी दे रहे हो और ड्यूटी के नाम पे उसका खच्चीकरण हो रहा है. दैट इज नॉट द वे. वो जेब में से डाल रहा है, राइट. और उसको आप रिम्बर्स नहीं करोगे तो वो आगे ऑब्वियसली ही विल बी रिलक्टेंट. वो जानबूझ के फिर निग्लिजेंस करेगा. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना, राइट. ए पार्टनर हैज ऑथोरिटी, राइट, इन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम द लॉस. आप बोल रहे फायर लग गई, वो बाजू में रहता है या उसके सामने लग गई और बोलता है नहीं मैं स्लीपिंग पार्टनर हूं, आई एम नॉट एक्टिव पार्टनर, आई विल नॉट टेक प्रॉपर, मैं नहीं देखूंगा, वो एक्टिव पार्टनर का काम है. डोंट यू, ए रैशनल पर्सन विल डू दैट? नो. इट इज हिज रिस्पांसिबिलिटी यार टू प्रोटेक्ट द फर्म, राइट, अवॉइड द लॉस. वो बोलता है नहीं नहीं मैं एक्टिव पार्टनर हूं, मुझे अथॉरिटी में नहीं है फर्म के लिए एक्शन लेना. हम पार्टनर में डिसाइड हुआ आई कैन नॉट टेक एनी एक्शन, आई एम ए स्लीपिंग पार्टनर. तो ऐसे केसेस में यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट यार. इट इज योर अथॉरिटी इन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट्स. मे बी आपको अथॉरिटी नहीं होगी, बाय योर एग्रीमेंट यू आर नॉट लायबल टू एक्ट, यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू एक्ट, बट इमरजेंसी में अगर आप सच एक्शन लेते हो विच इज गुड फॉर द फर्म, इट इज ट्रीटेड एज इट इज विद इन योर अथॉरिटी, बिकॉज ये इमरजेंसी है. समझ में आ रहा है, राइट. पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म from the loss at would be done by the person of a ordinary prudence, rational person in his own case. अगर खुद का वैसे होता तो तू एक्शन लेता ना. हाँ, तो उसी एंगल से अगर तूने फर्म के लिए एक्शन लिए, भले ही तू उसके लिए इंटाइटल नहीं है, फिर भी वो माना जाएगा, राइट. एक्टिंग अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, such acts of the partners bind the firm. Such acts of the partner bind the firm. Try to understand. So try to understand. कोई पार्टनर नहीं है, कोई भी पार्टनर नहीं है, एंड फर्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी आ गई, एंड जो पार्टनर है, राइट, ही इज स्लीपिंग पार्टनर, बट ही एक्ट्स, वो सोचता है कि फर्म के लिए अच्छा है एंड उसमें फर्म का फायदा होगा, राइट. या कोई ऐसे एक्शन ले रहा है जिससे फर्म का लॉस कम होगा, भले ही उसके अथॉरिटी में नहीं है, बट वो ले रहा है. इन सच ए केस इफ इट इज प्रूव्ड दैट इट इज गुड फॉर द फर्म, राइट, ऑर्डिनरी कोर्स में वो खुद के लिए भी वैसे काम करता है. एग्जाम्पल, मैंने आपको मेरी बाइक दे दी, तो आप बाइक कैसे यूज करोगे? मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा आपसे? यू शुड यूज इट एज इफ इट इज यूअर्स, ऑब्वियसली ना. इट इज एक्सपेक्टेड दैट अगर आप वैसे यूज कर रहे हो, राइट, एंड उसके लिए अगर आप कुछ खर्चे करते हो, राइट, सपोज पूरा लॉकडाउन है या मैं बाहर गया हूँ, सिटी के बाहर हूँ, मैंने आपके कस्टडी में मेरी बाइक रखी है एंड आपको लगता है कि अभी सर्विसिंग करनी चाहिए और यू इनकर दैट एक्सपेंस. अगर मैं रहता तो भी सर्विसिंग करता. तो सपोज यू आस्क मी कि इतने पैसे हो गए तो आई विल रिइंबर्स यू. मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है. मे बी हम लोग शेयर करेंगे, 50% वो करेगा, 50% मैं करूंगा, बट इट इज हिज राइट. अगर ऑर्डिनरी कोर्स में भी मैं करता, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो उसने कुछ अलग नहीं किया है, तो इट इज हिज राइट टू गेट रिइंबर्स. देन, राइट, क्या लिखा है? A partner has authority in emergency to do all such acts for the purpose of protecting the firm from the loss at would be done by him, right. एखादा प्रूडेंट पर्सन करता, इन हिज ओन केस, प्रूडेंट पर्सन खुद के लिए जो करता, अगर वही पार्टनर फर्म के लिए करता है तो ही इज इंटाइटल्ड टू गेट रिइंबर्स. एक्टिंग अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, सच एक्ट्स ऑफ द फर्म बाइंड्स द फर्म, सच एक्ट्स ऑफ द पार्टनर बाइंड्स द फर्म. फिर पार्टनर्स नहीं बोल सकते तूने क्यों ये एक्शन ले ली, तू तेरे तो अथॉरिटी में नहीं था. अरे आई हैव डन इट इन इमरजेंसी. ऑर्डिनरी में तो मैं नहीं हूं, लेकिन इमरजेंसी में मैंने काम किया है, फर्म के लिए किया है. और अगर ये मेरा भी काम रहता तो भी मैं यही काम करता, मेरी प्रॉपर्टी रहती तो भी मैं करता, मेरा खुद का बिजनेस होता तो भी मैं करता. मैं पार्टनरशिप में हूं तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं. अगर ये प्रूव होता है, अगर ये है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ द फर्म, भले ही that is not his act or he is not entitled to do that. Ordinary course में वो eligible नहीं हो करने के लिए, but emergency में अगर वो करता है तो वो eligible है, ऐसे माना जाएगा. Then if
एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच एक्ट, ऐसे एक्ट की वजह से, ठीक है, द पार्टनर इंकर सम लाइबिलिटी और मेक सम पेमेंट्स, ही हैज द राइट टू बी इंडेमनिफाइड, ही हैज राइट टू बी इंडेमनिफाइड। एग्जांपल देता हूं, एक पार्टनर है, उसको राइट नहीं है टू, राइट, जो गुड्स परचेस करते हैं उसको, वो एक अलग पार्टनर वो पूरा देखता है, स्टोर्स वगैरह सब चीजें वो देखता है, ठीक है, दैट इज हिज राइट। उसको कोल्ड हाउस, राइट, स्टोरेज में रखना है, क्या करना है, राइट, जो भी है वो सब एक पार्टनर देखता है। हमारा जो पार्टनर है उसको राइट नहीं है, एंड नाउ कुछ इमरजेंसी अराइज होती है, एंड देयरफॉर ही टेक्स द डिसीजन टू प्रोटेक्ट दोस गुड्स। अगर ऐसे केसेस में, राइट, वो कुछ एक्शन ले रहा है, इट इज इन अ प्रूडेंट वे, तो दैट एक्शंस आर एक्शंस ऑफ द फर्म। तब बाकी पार्टनर नहीं बोल सकते ये तो तेरा काम नहीं था। अरे मैंने क्यों काम किया, बिकॉज इमरजेंसी अराइज हुई है, एंड इसके लिए मैं फर्म के बेनिफिट के लिए काम कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे केसेस। एंड इन दैट केस इफ ही इंकर सम एक्सपेंसेस, इट इज हिज राइट टू गेट इंडेमनिफाइड। मैं सिंपल आपका एग्जांपल देता हूँ, आप घर पे हो, अकेले हो, आपके मम्मी पापा जॉब पे गए, एंड सपोज आप बीमार पड़ते हो और आपके नेबर, राइट, आपको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, दे आपका ट्रीटमेंट, इलाज वगैरह करवाते हैं, राइट, एंड आप एडमिटेड हो, तो उन्होंने सपोज 4,000-5,000 रुपए वहां पे दे दिए। डोंट यू थिंक इट इज देयर राइट टू गेट इंडेमनिफाइड? अगर उनका भी बेटा बीमार होता तो वो लेके जाते, बराबर। उन्होंने कुछ गलत किया क्या? आपके मम्मी पापा थोड़ी बोलेंगे उनको, नहीं नहीं ये मेरा बच्चा था, आप क्यों लेके गए, इट्स नॉट योर राइट, ऐसे बोलेंगे। एक्चुअली यूर मम्मी पापा विल गिव देम, खुद होके देंगे, बिकॉज ये राइट के साथ लाइबिलिटी भी आती है। ये राइट है उस पर्सन का जिसने एक्शन लिया, और ये लाइबिलिटी है बाकी पर्सन की, राइट टू इंडेमनिफाई। ये राइट भी है एक साइड पे, एक लाइबिलिटी भी है एक साइड पे, ड्यूटी भी है। हम ड्यूटी में भी यही सीखेंगे। अगर कोई पार्टनर इमरजेंसी में फर्म के लिए काम करता है, इट इज आवर ड्यूटी टू इंडेमनिफाई। एक्चुअली उसने मांगना भी नहीं चाहिए, हमने खुद होके पेमेंट करना चाहिए। हमने पूछना चाहिए कितना पैसा हुआ और हम पेमेंट करेंगे। मेरे मम्मी पापा तो डेफिनेटली करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और आपके भी करेंगे। आई एम, तो ये सोचो ना, इस एंगल से सोचो, तो तब थोड़ी बोला जाएगा कि इट्स नॉट योर राइट, क्यों आपने उसको एडमिट किया। समझ में आ रहा है? तो इट इज हिज राइट टू गेट इंडेमनिफाइड, एट द सेम टाइम इट इज आवर लायबिलिटी टू इंडेमनिफाई। ये लायबिलिटी में भी पॉइंट आएगा। सो राइट